Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, okay, okay. So, what are topics that we have covered up till now? Or yesterday's lecture, what topic that we have covered? Anybody? So dictionary. What are the Yes, yes, dictionary. And in that dictionary, what are the different things that we have covered in dictionary? We saw various operations like if we want to clear the elements or if we want to delete the dictionary, clear the Yes. dictionary, or if you want to call one of the get one of the elements from the dictionary. So, these are the different operations that we have performed. So, some of the extra operations are there. For example, जैसे get के लिए हमने कीज के लिए फॉर एग्जाम्पल एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया था सिंपली व्हाट वी हैव डन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे उन्होंने किया है ये डायरेक्टली प्रिंट दिस डिक्शनरी ब्रैकेट मॉडल तो मॉडल की वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हुई थी so some of the other functions are there but that is not in your syllabus but we will still cover those regarding dictionary okay so ये देखा था ना हमने लाइकवाइज सिर्फ यहाँ पे उन्होंने क्या किया है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है और उसको क्या किया है डायरेक्टली असाइन करके उसको प्रिंट किया है what we have done here we directly print in bracket this dictionary in bracket model likewise we have done okay so instead of that if you are doing this so what is the answer that we will get anybody fast hello Yes, sir. yes what is the answer we will get x is equal to this dictionary in bracket year and then print x Year. hello yes year we will get that is 1964 yes Yes, तो sir. ये सिंपल ऑपरेशन हमने देखा था उसके साथ भी और एक है so get function that is given by python itself or to get specific what जो हमने अभी किया था instead of writing that what you are writing here this dictionary का नाम followed by dot followed by get that is the function that is given by python okay and in bracket the things that the key the value that which is stored in that specific key that we required. So for example, model I have written here. So we'll get the answer model is Mustang. Mustang. Okay. Yes. Instead of that, if you are writing brand, so you'll get the value Ford. that is stored in that specific key brand. So brand key value, for example, Ford. Ford. Yes, that will be print. So one of the function that will be used instead of directly writing what that specific key with respect to dictionary name. So what you have to do? What is the syntax? This dictionary dot get in bracket brand. The brand means the value key that you have to mention. So that is for this purpose you have to use the get function. Okay. Then specific keys चाहिए आपको. We want only keys from that specific what dictionary. So see here. So what is the function for that? Keys function is given. So you simply have to apply that on that dictionary variable that you have created. For example, this dictionary dot keys and उसको कहाँ पे स्टोर किया x में. So you'll get the dictionary keys, dictionary underscore keys in bracket, brand, model, year. So what is the meaning of this? What you will get using keys function? Anybody? This function is used to get keys of dictionary. Am I clear? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Okay. Yes. So this function is used to get a keys of डिक्शनरी तो किस फंक्शन सिमिलरली वैल्यूज नाम का एक फंक्शन होता है जैसे कि हमें क्या चाहिए उसकी वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टेड ऑफ कीज यू हैव टू राइट व्हाट वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यूज फॉर दैट स्पेसिफिक डिक्शनरी जैसे कि यहाँ पे हमने पहले इसमें क्या मिला था हमें व्हाट वी आर गेटिंग कीज
तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए, जो वैल्यूज विच आर अवेलेबल इन दैट डिक्शनरी, सो इट विल दिस फंक्शन gives values which are there in dictionary. Am I clear? All of you clear with this, the get function, values function, then keys function? Am I clear? Yes, sir. Okay, okay. देखो अभी यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, what they have done, x is equal to car dot values, you will get the car before the change, and then they have done one change. That change is what, car in bracket year is equal to 2020 and in bracket then print x. तो जो भी है अभी हमने चेंज किया, तो आफ्टर दैट चेंज यू विल गेट द चेंजेस इन योर डिक्शनरी. ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. यस. तो पहले क्या किया उन्होंने, वैल्यूज वहां पे प्रिंट किए थे with respect to before changing that specific dictionary elements. Then that they have performed what one operation, car in bracket year is equal to 2020. So they will get the answer. Instead of 1964, the value will be 2020. If you are doing likewise car in bracket, for example, brand, and square bracket close, okay, is equal to, for example, Audi. I have written the value Audi, and I will run that. So you'll get the change in that specific second print statement. So instead of Ford, you are getting Audi. Instead of 1964, you are getting the 2020. So these are the different functions with respect to what change item तो हमने देखा, add item भी देखा. Add item में हाँ अपडेट फंक्शन एक यूज करना था. ऑलरेडी अपडेट हमने डायरेक्टली करके देखा था. कैसे किया था अपडेट, हमने अपडेट कैसे की थी वैल्यू, हाउ वी हैव डन दैट अपडेट फंक्शन, कैसे किया था अपडेट, मतलब फंक्शन की जगह पे हमने क्या यूज किया था, ऐसे किया था कुछ. तो दिस डिक्शनरी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल कुछ तो वैल्यू देता हुआ यहाँ पे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सो गेटिंग. Sir. इससे भी ऐड होता है. एम आई क्लियर? दिस Yes, दिस sir. नेम इज इक्वल टू अनिल. तो नेम यहाँ पे ऐड हो गया. ओके, एंड देन योर कलर इज अपडेटेड. अभी कलर के लिए उन्होंने क्या किया, फंक्शन यूज किया. So that function is what, update function. So how that syntax is there, this dictionary dot update in bracket curly bracket में color colon जो भी आपको वैल्यू वहां पे उसको असाइन करनी है. So how many parameters are there now total final in list? पहले कितने थे हमारे, 3 थे. First one is brand, second one is model, third one is year. Now fourth one is what? Name. What is the parameter? Name. And last one is what? Color. Color. Okay. So likewise, if you have to add another thing, so you can add. So update use करना तो update use कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, you can use that जो syntax में ऊपर लिखा है वहाँ पे, you can use that specific what this dictionary in bracket the key that you want and the value that will be stored on that specific key. For example, यहाँ पे मैंने address डाला, and here I will return write a statement Pune. You will get the change in that. So last value of that your dictionary is what? Now tell me, what is the last value of your dictionary? Pune. Yes, Pune. So total how many elements are there now? 6 elements. Starting from brand, model, year, name, then color and last address. Address. Yes. So these are, ये इतना डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे. Simple questions are there in exam, but for knowledge purpose I am share these things with respect to you. Okay? Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. अभी लूप डिक्शनरी अब लूप भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे हमने लिस्ट के ऊपर लूप्स अप्लाई किए थे, तो लाइकवाइज यू कैन अप्लाई द लूप्स. जैसे कि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी प्रिंट एक्स, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगी, कीज मिलेंगे व्हेन यू आर अप्लाइंग द
फॉर लूप विथ रिस्पेक्ट टू वन काउंटर वेरिएबल इन दिस डिक्शनरी। तो उससे क्या मिलेगा आपको, हर एक डिक्शनरी की हर एक कीज मिलेगी, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। अभी उसके भी आगे कुछ थिंग्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए वैल्यूज, अभी आपको क्या मिली थी, कीज मिली थी। इफ यू वांट टू वैल्यूज, तो कीज डायरेक्टली आपने फॉर लूप अप्लाई किया डिक्शनरी के नेम के साथ, यू विल गेट द कीज। एंड इफ यू वांट दैट स्पेसिफिक वैल्यूज, हाउ टू अप्लाई दैट, फॉर x in this dictionary dot values colon and then print x। am I clear? तो वैल्यूज आपको फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। am I clear? you will get that specific values which are available in that specific dictionary using for loop। am I clear? यस सर। ऐसा no? Yes, sir. लाइकवाइज अभी कीज तो ऑलरेडी हमें मिले थे। ओके, सो कीज यूज करके भी आपको कीज मिलेंगे, और कीज नहीं यूज किया आपने, बाय डिफॉल्ट सिंपली आपने ऐसा लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा वहां पे, so still you will getting the keys of that specific dictionary। am I clear? यस सर। yes or no? yes or no? Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पे देखो आप, ये थर्ड पार्टी, ये इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट फॉर नॉलेज पर्पज यू कैन रेफर दिस, फॉर नेक्स्ट ईयर यू विल रिक्वायर दिस थिंग फॉर योर अदर सब्जेक्ट। देखो अभी प्रीवियस जो भी केसेस देखे थे हमने, वहां पे क्या किया था, सिंपली वन थिंग विल बी डिस्प्ले ना, yes or no? yes or no? either keys or either value with respect to for loop। am I clear? यस सर। am I clear? यस सर। yes or no? यस Yes। सर। तभी यहाँ पे आपको दोनों, yes, both things you required for that purpose। items नाम का एक फंक्शन है, so for that you have to apply two iteration variables, one is x and another is y in this dictionary in items। so आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिलेगी। देखो अभी ब्रांड फोर्ड मिला है, उसके बाद मॉडल मस्टैंग मिला है, और ईयर 1964 मिला है। am I clear with respect to for loop? यस सर। हॅलो सर, so these are, हाँ बोला। एक्स आणि वाय हे फक्त व्हेरिएबल म्हणून यूज केले जातात का, पी आणि Yes, क्यू? yes, yes. नाही, काही पण लिहू शकता तुम्ही त्याचे, काही नाही, जसं आपण नॉर्मली करतो ना, फॉर लूपचे काउंटर व्हेरिएबल काही घेऊ शकतो ना आपण। म्हणजे कोणता पण अल्फाबेट घेऊ शकतो? येस येस, कोणताही घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन ट्राय। जसं फॉर लूप, हा समजलं। येस सर। रेंज, सो दॅट कॅन इटरेशन साठी घेतो, की मोर दॅन, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक सिंगल लाईन मध्ये तुम्हाला मल्टिपल गोष्टी करायला, फॉर एक्झाम्पल आता मला जर ब्रँड असं 1 by 1 एका लाईन मध्ये पाहिजे त्या गोष्टी, तर मी काय केलं, सिंगल फॉर लूप अप्लाय केला, आणि त्याच्यामध्ये ते काउंटर व्हेरिएबल घेतले। तो काउंटर व्हेरिएबल फक्त तो हे समजतो की आय इज नथिंग बट युअर फर्स्ट व्हॅल्यू ब्रँड, अँड जे इज नथिंग बट युअर फर्स्ट की ब्रँड, अँड जे इज नथिंग बट युअर फोर्ड दॅट इज व्हॅल्यूज। तो परत इन्क्रीमेंट होणार, आय ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट होईल, तो काय कन्सिडर करणार, मॉडेल। लाईकवाईज जे काय कन्सिडर करणार, मस्टँग। लाईकवाईज अगे इन्क्रीमेंट होणार, ते कुठपर्यंत चालणार, जेवढे एलिमेंट आहे तुमच्या डिक्शनरीमध्ये तेवढे हे करणार। एम आय क्लिअर? यस सर। yes or no? Yes So sir. like that we are using for list also, we can use for tuple also। okay, so this is all about the other data types। तर क्वेश्चन जर तुम्ही पाहिले तेवढे काही डिफिकल्ट नसतात, सिंपल क्वेश्चन असतात रिगार्डिंग, पण 2-3 लाईनचे कोड असतात, इन दॅट यू हॅव टू व्हॉट दे विल गिव्ह द लाईकवाईज, फॉर एक्झाम्पल आता सिंपल असं काहीतरी दिलं असेल तुम्हाला ऍक्सेस आयटम, सो दिस असा एक कोड असेल 3-4 लाईनचा, अँड यू हॅव टू फाइंड आउट द करेक्ट आन्सर फॉर दॅट स्पेसिफिक प्रोग्राम। एम आय क्लिअर? आपण बरेच एक्स्ट्रा फंक्शन घेतले, त्यातले बरेच फंक्शन तुम्हाला ऍज अ नॉलेज पर्पज साठी तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा, बट आणि जर विचारलं तर तीच गोष्ट, म्हणजे विचारलं म्हणजे शक्यतो विचारत नाही, पण काय सांगतात, एसपीपी आपलं M1चा पेपर पाहिला असेल तुम्ही, काही भरोसा नाही लास्ट टाइम, हा भरोसा नाही, पण लास्ट एक्झामला तसं काही झालं नव्हतं, म्हणजे जी फर्स्ट टाइम पीपीएस ची एक्झाम झाली होती त्याच्यामध्ये असं काही असे कॉम्प्लिकेटेड काही क्वेश्चन्स असे आले काही नव्हते, बट यू कॅन व्हॉट रिमेंबर दीज थिंग्स रिगार्डिंग फंक्शन्स, तो आपको पता चलेगा, काय सिंपल सगळं अवेलेबल आहे, रेकॉर्डिंग तर केलेलंच आहे आपण लेक्चरचं। ओके सर, सॅम्पल पेपर दाखव। कसं आहे सॅम्पल पेपर? लास्ट म्हणजे मागे एक्झाम झाली त्याचा क्वेश्चन पेपर। अरे तो एमसीक्यू असतो ना, क्वेश्चन पेपर कसा भेटेल एमसीक्यूचा? ते तुमच्या लॉग इनला येतो ना तुम्हाला पेपर, तो डायरेक्ट सॅम्पल काय क्वेश्चन असतात वगैरे वगैरे। हा क्वेश्चन तुम्हाला मी दिलेत ना डायरेक्टली याच्यावर टाकलेत की आता पण मी कव्हर करणार आहे काही क्वेश्चन, ठीक जे स्टार्ट करू आता, युनिट नंबर 1 आणि 2 झाले ना,
येस सर. ते क्वेश्चन आपण पाहू. त्यातले काही क्वेश्चन एक्स्ट्रा म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस पण असतील, पण ते कळून जातं आपल्याला लगेच. ओके. ठीक आहे तशा टाईपचे क्वेश्चन ते मी तुम्हाला सांगा नाही. आता तुम्हाला हे पण केलं नाही, क्विज 1 दिली ना तुम्ही. हो दिली ना. हा, क्विज 1 मध्ये जसे क्वेश्चन होते ना, त्या टाईपचे क्वेश्चन असतात. ठीक आहे सर. ओके. त्या टाईपचे थेरी पार्ट प्रॉपरली करा. तो थेरी पार्ट असेल किंवा मग त्याच्या रिगार्डिंग सिंटॅक्स असेल, ते जर क्लिअर असेल ना, यू कॅन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑफ दॅट स्पेसिफिक पायथॉन. एम आय क्लिअर? येस सर. ओके. स्टील आय थिंक 40 स्टुडंट्स आर अब्सेंट. बघायला लागेल काहीतरी यांच्याकडे. काय रिझन आहे आज अब्सेंट राहण्याचं? एनीबडी? आज सुट्टी असते ना सर, त्यांना माहित नसेल आज लेक्चर. हो का? मेसेज तर हो. सकाळपासून लेक्चर चालू नाही ऑनलाईन नसतील एखाद्या वेळेस म्हणून. हा, पण सकाळी लेक्चर झालेत ना, सकाळी पण अशीच अटेंडन्स होती का मॉर्निंग पासून? हा आज कमीच आहे सर अटेंडन्स. हो सर. येस. ओके ठीक आहे. So this is our unit number 2. Can anybody tell me what are the topics that we have covered? So we will move forward with this to some MCQs. MCQ पाहू मग याच्यानंतर लगेच. नेक्स्ट युनिट मग नेक्स्ट लेक्चरला करू स्टार्ट आपण. ओके. टेल मी काय पहिलं सांगा युनिट नंबर 2 मध्ये. What are the topics that we have covered? Starting from control statement. येस, कंट्रोल. हे लक्षात ठेवा, युनिट नंबर 2 वरती कंट्रोल स्टेटमेंटचे भरपूर क्वेश्चन्स असतात आणि ते क्वेश्चन्स थोडे ट्रिकी, म्हणजे ट्रिकी नसतात ऍक्च्युली. ते काहीतरी म्हणजे थोडासा काहीतरी चेंजेस असतो. तुम्हाला वाटतं की हे आन्सर असलं, पण तसं नसतं. विचारलेला असतो प्रिंट वाय केलेला असतो, तुम्हाला असं वाटतं की प्रिंट एक्स, म्हणजे ते पाहायला लागतो प्रॉपरली, तो कोड पाहावा लागतो. कंडिशन चेक करायला लागते. फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल कंडिशन्स आर देअर. ऑर लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देअर युझिंग. तुम्ही आता क्वेश्चन पाहिले असेल लॉजिकल ऑरची क्वेश्चन किंवा लॉजिकल अँडची इन इफ कंडिशन. सो त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला आन्सर माहिती असतं, कन्सेप्ट पण माहिती असतो, पण त्या केसमध्ये घाईमध्ये तुम्ही काय करता, यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स फॉर दॅट स्पेसिफिक क्वेश्चन. असं झालेलं आहे बरेच वेळा. त्यामुळे क्वेश्चन्स प्रॉपरली पहा, सिंटॅक्स यू हॅव टू सी प्रॉपरली व्हॉट दे आर आस्किंग अबाउट, व्हॉट इज द प्रिंट स्टेटमेंट दे आर आस्किंग अबाउट. प्रिंट स्टेटमेंट विचारलेलं असतं एक, तुम्ही व्हेरिएबल्स मध्ये तुम्ही कन्सिडर करता वेगळंच, आणि तो ऑप्शन असतो पण खाली. एम आय क्लिअर? येस सर. सो वाईल यू आर फाइंडिंग द आन्सर्स ऑफ प्रोग्राम, थेरॉटिकलचं तुम्हाला माहिती आहे, दोज आर theoretical concept, theoreticalचा आन्सर तुम्हाला कळून जातं. पण while you are checking the answer options of that specific snippet, that is code के जो भी questions होते, so in that case you have to see properly what they are asking. फ्लोर डिव्हिजन आहे तर फ्लोर डिव्हिजनचा आन्सर काय यायला पाहिजे. सिंगल नॉर्मल डिव्हिजन तिथे काय आलं पाहिजे, तिथे घाईमध्ये तुम्ही काय करता 4.0 आणि 4 मध्ये कन्फ्युजन होतं. जिथे 4 कन्सिडर करायचं असतं 4.0 कन्सिडर करता, आणि जिथे 4 करायचं असतं त्या 4.0 असते ते 4 करता कन्सिडर. So that thing you have to remember. Like modulus operator, likewise. So control statements में हमने देखा था if else, elif, nested. Then decision making में हमने iterative statements भी देखे थे. Iterative statement में for loop, while loop, that concept that we have covered. Then followed by some of the statements that we have to use for controlling the iterative statements. Which are those? Controlling के लिए कौन से statement? Yes, break statement, continue statements, then pass statement that we have. Yes. Then next thing that we have covered is what? Other data types. Okay, other data types में list, tuple and dictionary. तो वो सारी चीजें आप एक बार WT स्कूल पे जाके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं. You can try at your own by using compiler, any online compiler. तो सारी चीजें एक बार आप करके देखो. Okay, am I clear? Yes sir. Yes sir. So next thing is you have to complete this theory assignment 2 up to next Monday. Am I clear? Yes sir. Okay. Theory तो हो गया, उसके बाद लैब असाइनमेंट भी हो गया, डन विद एटलीस्ट 5 असाइनमेंट वी हैव कवर्ड. 6 हो गया वैसे, रिवर्स वाला भी ऑलरेडी हमने कवर किया था. If you want to write that write up, you can try that write up also. 6th assignment, that is take an input as any number and display the reverse of that specific number. Am I clear? Yes sir. Am I clear? Okay. तो उसके बाद 2 ही आपको राइटअप लिखने हैं रिगार्डिंग लैब, और बाकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स लेंगे फॉर लैब सेशन. ओके, उसके आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यू हैव टू राइट टाइप अ कोड in lab session and show me the output of that specific code. But write-ups and backup आपको total 8 assignments का वहाँ पे आपको करके रखना है. Am I clear? Yes sir. Okay. So we will I will open that one of the file
that I have given in your uploaded in your classroom regarding MCQ Python. उसमें सारे मतलब एक कुछ टॉपिक वाइज मैंने अपलोड किए हैं एंड वन फाइल इज देयर, वहां पे 600 क्वेश्चन, देखो 215 टोटल पेजेस आर देयर. इस स्क्रीन इज विजिबल? यस सर. हाँ, तो टोटल 215, वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि 2000 मतलब हाई लेवल के होंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, बट आपको यू कैन स्किप दोस क्वेश्चंस. ओके, एम आई क्लियर? यस सर. यस और नो? ओके, so first question and you have to give the answer now. I am not telling you any answer regarding this. You have to give the answer. Starting from first question. Question आपको ही रीड करना है, आंसर भी आपको ही देना है. हॅलो सर. हाँ बोला. ह्याची पीडीएफ आम्हाला पाठवणार का? अरे मी काय बोललो आता? पाठवलेलं आहे क्लासरूमला. अरे पहिल्या लेक्चरला एक आता महिना होईल जवळपास अपलोड करून. आज किती तारीख आहे? 20 तारीख. 19 तारखेला 21 तारखेलाच अपलोड केलं मटेरियल सगळं मेच्या. ऑल थिंग्स आर अपलोडेड ऑन युअर गुगल क्लासरूम. चेक करा सगळ्या गोष्टी. नोट्स असेल, देन पीपीटीज असतील, देन स्कॅन बुक असेल, ऑल थिंग्स आर देअर. काही माझ्या साईडने काही राहिलं नाही, तुम्हाला तुमचं काम करायचं फक्त. आता ते बघा, म्हणजे तुम्ही याचा अर्थ तुम्ही ओपन पण नाही केलं, काही लोकांनी चेक पण नाही केलेलं, बरोबर ना? केलंय सर. यश मी काय केलं. यश हो मी चेक केलं केलेलं आहे. हो मी त्या दिवशी हा तरी मग विचारतोय. तरी विचारतोय तू मग. ओके ठीक आहे, हा ठीक आहे चला. विच ऑफ द फॉलोइंग व्हर्जन ऑफ पायथॉन वॉज रिलीज इन डिसेंबर 2015? 3.5.1. येस B येस option. ऑब्विसली येस तेच असणार आहे, कारण की 2.46 ते सगळे अगोदरचे. 3.3 पण मधला आहे, आणि ऑब्विस तुम्ही ते एक पीपीटी दाखवली तुम्हाला, त्याच्यामध्ये सगळे व्हर्जन्स आहेत, ते पाहून घ्या एकदा. जनरली JDD वर पण तेच लिहिलंय. येस 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 येस. ओके, नेक्स्ट वन. .py. सिंपल आहे. आता हे कसं आहे, आपण आता ऑनलाईन करतो त्यामुळे फाईल सेव्ह करायची गरज नाही. But those are doing the programs on IDE or any other platform. तो वहां पे आपको कंपलसरी फाइल किसमें स्टोर करनी पड़ती है, वो फाइल जो भी हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम की .py एक्सटेंशन. जैसे कि C++ के लिए .cpp, देन C के लिए .c, जावा की फाइल .java, देन HTML फॉर HTML एंड HTML दोनों भी होते हैं. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next one. ये अभी कोई लोगों ने ये यूज भी किया होगा, आइडियल यूज करते होंगे अभी आप लोग. पाइथन शेल. यस आइडियल. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3. सो आइडियल का यहाँ पे क्या हो गया, स्टैंड फॉर. यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में क्या हो गया, एक वर्ड मिसिंग है एक्चुअली सेंटेंस में. एनीबडी नो द फुल फॉर्म ऑफ आइडियल? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट. तो यहाँ पे क्या हो गया, लर्निंग यहाँ पे मिस हो गया. पर एज पर द कंपेयरिंग द अदर 3 ऑप्शंस, व्हिच इज द करेक्ट एंड? एनीबडी? बी. बी. डी नाही रे, डी कुठे काय? बी. Yes, BB. Integrated Development and Learning Environment. All of you write down the full form. Integrated Development and Learning Environment. IDEAL का stands for. Okay, am I clear? Yes, sir. No? Yes, Okay. sir. Next one. ये सिंपल है अभी. ये तो हम हमारा स्टार्टिंग ही इससे हुआ था. रन. रन म्हणलं तो मला का फटकेच देणार तिकडे येऊन द्या. मला कुठं राहतो तू? सॉरी सर. हा, रन कुठून आला सांग. फंक्शन टू डिस्प्ले स्पेसिफाइड मेसेज ऑन द स्क्रीन. एनी आउटपुट फॉर एनी आउटपुट वी हॅव टू यूज प्रिंट. डिस्प्ले रन आउटपुट असं काही पाहिलंय का आतापर्यंत आपण? कुठला सिंटॅक्स पाहिला का? एनीबडी पाहिलं का? कॉमन चुकला तो. ओके चालतंय काय. हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पायथॉन? First one. D A option. option. D. फर्स्ट वन जो बोला त्याला फटके दे. डबल इक्वल टू इज नथिंग बट व्हॉट? कंपॅरिझन ऑपरेटर. एम आय क्लिअर? हा, आणि ते खालचे तर काही कामाचीच नाही. बी आणि सी तर ऑब्विसली असणार. एम आय क्लिअर? ओके, नेक्स्ट.
Question number 7. Which of the following is used to initialize multiple variable with common value? ये भी लिया था मैंने आप करके दिखा था। B. B. Second Yes. one. X is equal to Y is equal to Z. अरे म्यूट कर कोणाचा आवाज येतो? अथर्व. अथर्व. म्यूट yourself. Okay. Next. Hash. B. हॅश. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला आता ऍक्च्युली काय आहे सिलेबस मध्ये मल्टीलाईन आणि सिंगल लाईन असं कुठे काय केलं पण कुठे मेन्शन केलेलं नाहीये बट आपण घेतलेलं आहे ते तर लक्षात ठेवा मल्टीलाईन कमेंट्स आर गिवन बाय व्हॉट मल्टीलाईन कमेंट्स आर गिवन बाय व्हॉट Inverted कॉमा. हा येस तर इन्व्हर्टेड असेल आता तसा जो ऑप्शन असेल म्हणजे क्वेश्चन जर तसा विचारला मल्टीलाईन कमेंट स्पेसिफिकली यू हॅव टू मेन्शन द करेक्ट ऑप्शन एज इन्व्हर्टेड कॉमा अँड इफ दे आर असं डायरेक्टली असेल तर हॅशनीच आपण कन्सिडर करणार आहे ओके नेक्स्ट Input C. इनपुट. येस Input. युजर स्पेसिफाईड व्हॅल्यू असा मेन्शन होतं ना तिथं दोन आपण आन्सर क्लिक करायचं इनपुट ओके आणि एक लक्षात ठेवा अजून एक तुम्हाला सांगतो सिंपल थिंग यू हॅव टू रिमेंबर पण कीवर्ड जे लक्षात युज केलेत ना ते कीवर्ड लक्षात ठेवायचे ऑनली सिम्पली युजर नावाचा कीवर्ड युज केलाय का आपण No. एंटर नावाचा कीवर्ड युज केलाय का नहीं नहीं. No. वैल्यू नाम का कीवर्ड यूज किया क्या हमने नो. नहीं. तो मतलब कॉमन सेंस है कि इनपुट नाम का एक वहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया हमने इनपुट फंक्शन एम आई क्लियर यस सर. Yes, sir. यस अभी ये भी बहुत मैंने आपको पहले बताया था ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिकी में पूछा जाता है एक्चुअली बी ऑप्शन. यस Perfect string. मैंने आपको पहले बताया था व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग एनी व्हाट मेंशनिंग व्हाट डेटा टाइप ऑफ दैट इनपुट फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है will take string integer. yes perfect नेक्स्ट वन कुछ स्टेटमेंट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट उसका आंसर इजी होता है बट दैट यू हैव टू ये से यहाँ पे देखो Slash T ना इसका क्योंकि N is for new line. Slash T. हाँ तो वो उन्होंने वही बोला है ना कैरेक्टर एट द एंड ऑफ लाइन बाय डिफॉल्ट Yes. बाय डिफॉल्ट मींस व्हाट आपने देखा होगा व्हेन यू आर राइटिंग दैट फॉर लूप और एनीथिंग आंसर कैसे डिस्प्ले होता है हमारा एक वन बाय line वन में हो जाता है. एक लाइन के नीचे नहीं नॉट एक लाइन रे जैसे कि मैंने प्रिंट फॉर एग्जांपल व्हाट ए किया उसके बाद प्रिंट बी किया Okay, प्रिंट सी हाँ. किया वन बाय वन लाइन होता है तो बाय डिफॉल्ट Yes. बाय डिफॉल्ट sir. होता है इनविजिबल ना दैट कैरेक्टर इज इनविजिबल ना न्यू लाइन कैरेक्टर एम आई क्लियर यस सर. मैं आपको बोल रहा हूँ तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इनविजिबल कैरेक्टर मतलब वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे जाता है दैट इज नॉट द थिंग विथ योर अदर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एम आई क्लियर यस सर. Yes, sir. Yes. Yes. तो यहाँ पे आंसर क्या है स्लैश एन एम आई क्लियर यस सर. नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीपल वैल्यूज आपको डिस्प्ले कर रहे हैं पेरेंट्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट कैसे एक सिंगल स्पेस पे डिस्प्ले होता है ना एक Am I clear? space होता है यहाँ. सिंगल स्पेस यस आपने स्लैश टी दिया तो आपको डबल मीन्स आपको टैब वाला मिलेगा एम आई क्लियर यस सर. तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो हाँ एक्चुअली ये ट्रिकी मतलब एक्चुअली नहीं पूछेंगे पर यू कैन रिमेम्बर दिस आल्सो अभी ये कैसे होता है बताता हूँ आपको क्या बोला है यहाँ पे बोलो मुझे एनीबॉडी कैन रीड द क्वेश्चन Which of the Which of the following? following can provide an exclamation mark character as Yes. सेपरेट alternative? अभी यहाँ पे आपको Yeah. एक करके दिखाऊंगा मैं आई विल शो यू क्या सेपरेशन यूज किया मैंने यहाँ पे व्हाट इज सेपरेशन आई यूज At the rate. एट द रेट तो यहाँ पे तो एज पर दिस
जो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है उसमें से अभी कौन सा ऑपरेटर मतलब ये आना चाहिए, करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए? डी। यस डी। जहां पे मैंने ये लिया ना तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, इन्वर्टर लिया। ओके सो आई विल डू दिस आल्सो। तो वहां पे अमोल के बाद आपको क्या होगा? यस सर। ओके एम आई क्लियर? यस सर। हाँ ये पूछेंगे नहीं पर याद रखो आप। एम आई क्लियर? यस सर। ओके ठीक है नेक्स्ट। अब ये तो सिंपल है, जो एंड का हमने किया था सिर्फ यार सिंटैक्स याद रखो। सिंपली वहां पे उन्होंने क्या किया है, एक ऐड किया, जहां पे हम स्पेस ऐड करते थे वो क्या ऐड किया है उन्होंने, स्टार। सो स्टार उसके हिसाब से एक ही सिंटैक्स बराबर है यहाँ पे, कौन सा? सी। सी ऑब्वियसली। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग द स्पेस और वी आर नॉट गिविंग द स्पेस। स्पेस देना नहीं देना तो आप क्या करते हैं, सिंपली वी आर यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके स्पेस देके भी आप कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या स्टार का मतलब क्या होगा, वहां पे जो भी डिस्प्ले होगा उसके बीच में क्या आएगा, स्टार आएगा। यस और नो? यस सर। यस यस यस। नेक्स्ट वन। अब ये रिगार्डिंग जो आपको मैं बोलता था सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर, रिगार्डिंग दिस ऑल क्वेश्चंस आर देयर। तो अभी पढ़ो एक बार, ठीक से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 50। सिंटैक्स क्या बोला है वहां पे उन्होंने? For which type of error does they interpret halts and reports an error but does not execute? Obviously कौन सा होगा वो, सिंटैक्स ना? Am I clear? यस सर। आपके कोड में आपने कुछ सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स किए होंगे तो वहां पे क्या करता है, हॉल्ट करता है, डायरेक्टली आपको एरर वहां पे डिस्प्ले करता है। Am I clear? यस Yes सर। or no? यस Yes, perfect. Next 16. रन टाइप है क्या सर ऐसे? यस वन टाइम एरर। यस करेक्ट करेक्ट। एक्सेप्शन, और अभी ये आपको है ना ट्राई एंड कैच वर्क करके एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक होता है टॉपिक, दैट कैन बी यूज्ड जावा आल्सो इन पाइथन आल्सो। तो वहां पे रन टाइम में एक्सेप्शन हैंडलिंग का एरर आपका आता है। तो जहां पे एक्सेप्शन वगैरह वर्ड होगा तो दैट टाइप ऑफ एरर्स आर ऑल आर रन टाइम एरर। एम आई क्लियर? यस सर। ओके अभी थर्ड वन, 3 टाइप के एरर आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सिमेंटिक होगा। यस परफेक्ट। सिमेंटिक को क्या बोलते हैं, एनी अदर वर्ड? सिमेंटिक सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, जो मैंने हर टाइम यूज किया है प्रैक्टिकल में? फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज इंटरप्रेट रन द प्रोग्राम डज नॉट रिपोर्ट एन एरर? सिमेंटिक बराबर है, पर सिमेंटिक के लिए मतलब जो जनरली हम यूज करते हैं वर्ड वो क्या हो सकता है? लॉजिकल एरर। लॉजिकल। यस लॉजिकल एरर। मतलब आपने क्या है, जैसे कि मुझे चाहिए था 1 to 5 बट डिस्प्ले 1 to 4 ही हो रहा है, तो इस टाइप का एरर क्या हो गया? विच टाइप ऑफ एरर लॉजिकल। Logical error. तो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द 3 टाइप्स ऑफ एरर? यस सर। एम आई क्लियर? तो Yes, इसमें sir. से कोई भी क्वेश्चन Yes, आया तो यू कैन रिमेम्बर, एक तो होता है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है वो होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स, और एक्सेप्शन आपको थ्रो करता है Run उस टाइप time. के एरर रन टाइम एरर, और थर्ड होता है जहां पे आपको एरर कुछ नहीं आता है, सिंपली यू विल गेट द आउटपुट। तो दैट टाइप ऑफ एरर आर सिमेंटिक। Semantic. वहां पे लॉजिकल होगा तो लॉजिकल आंसर लिख सकते हैं आप। एम आई क्लियर? यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट। अभी प्रोग्राम के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सुबह, मतलब कुछ देर पहले, कि यहाँ पे आपको ठीक से देखना है 2.0। यस परफेक्ट। हाँ यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन होता है जनरली। क्या कंफ्यूजन? पर मैंने आपको पहले बताया था 2 टाइप के ऑपरेटर यूज करते हैं डिवीजन पर्पज के लिए। अभी यहाँ पे दोनों वैल्यू इंटीजर है। एम आई क्लियर? दोनों वैल्यू इंटीजर है कि नहीं? ऐसा और नो? यस सर। हाँ बट while you are using नॉर्मल डिवीजन it always gives you answer what in what सिंगल टर्म। हाँ सो आपको आंसर 2 आ रहा है, बट वो डिस्प्ले कैसे करेगा आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर? 2.0। 2.0. हाँ इंस्टेड ऑफ दिस इफ दैट डबल स्लैश इज देयर देन योर आंसर इज व्हाट? 2 आएगा। 2। यस परफेक्ट। तो ये अभी ये कंफ्यूजन पर्पस, मतलब ट्रिकी पर्पस में ये क्वेश्चन होता है, और वहां पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। आपको आंसर पता होता है फिर भी वहां पे कैसे होता है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो वहां पे लास्ट में आपको पता नहीं चलता, मतलब कंफ्यूजन, मतलब आपको रिवाइज नहीं किया रहता है तो किसमें क्या होता है वो याद नहीं रहता। एम आई क्लियर? यस सर। यस नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है, पर ऑपरेटर चेंज किया उन्होंने। इसका 4 आएगा। बी। यस यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस। अभी ये बाकी के ऑपरेटर के क्वेश्चंस देखो वन बाय वन।
व्हॉट इज आन्सर? बोलो ना आता तर 20 कुठून आलं? आठवत नाही सर ते त्याच मॉड्युलस ऑपरेटर काय देतो? 1 अरे इट विल गिव्ह द रिमाइंडर. 5 into 20 कसं येईल? रिमाइंडर देईल ना. 20 साठी तुम्हाला स्टार सिम्बॉल काय पाहिजे? हा सर सॉरी 1 येईल 1.0. Yes. 1 1 5 divided by 4. Remainder is 1. Am I clear? यस सर Yes, sir. Now next. अभी ये हमने देखा था इन प्लेस ऑपरेटर वाला क्वेश्चन. 5 आता इथे म्हणू नका 6 ऑप्शन पण नाही म्हणा. जाऊ द्या सर काही बोलत नाही मी. 3. What is the meaning of x plus is equal to y? x plus y x plus 5 y Yes. So what is value of x? 3. 3 Yes. Y की वैल्यू कितनी है? 2 3 plus 2 कितना हो गया? What is answer then? 5. 5 Yes. C is the option. Yes, correct. Now next. 35 35. Yes, perfect. Next. 10. 10 Yes, 10. अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझते 10 नेक्स्ट 4 येईल. 4 आहे 4 आणि एक लक्षात ठेवा, तो जो स्टार्टिंगचा पार्ट आपण घेतला ना कोणता वाला रिगार्डिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, जिथे आपण टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम, तो एकदा फक्त थिअरॉटिकली रिवाइज करा काय काय त्या गोष्टी आहेत. त्याच्यावरती शक्यतो जास्त क्वेश्चन विचारले जातात. त्याच्यावरती आतापर्यंत क्वेश्चन जनरली कुठले विचारलेत? रिगार्डिंग अल्गोरिदम फ्लोचार्ट वरती विचारलेले. थ्योरेटिकल है Yes, ना sir. पूरा पार्ट. हाँ थ्योरेटिकल पार्ट है. हाँ, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन क्योंकि वो थ्योरेटिकल भी है और उसमें क्या है क्वेश्चन उसने मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ नहीं है, बट सिंपल Yes. क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम डिजाइन टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी. वो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इसमें कवर किए. कौन से? क्विज 1 में क्विज 1 दिया होगा आपने, उसमें क्वेश्चन थे उस टाइप के. यस सर यस. अभी यूनिट टेस्ट 1 में भी डाले कुछ क्वेश्चन उस टाइप के, तो यू कैन रिवाइज ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट. तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो जनरली ज्यादा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होंगे. एम आई क्लियर? यस सर हाँ सर 24 आंसर सी है. यस 24 आंसर सी. यस हाँ म्हणजे सी ना, सी प्लस 2 आंसर 2 है ना. 30 mod 7 काय 2 आंसर है ना 2. येस 2 ना, सी ऑप्शन ना, तेच म्हणतो ना मी. हाँ 30 mod 7 2 ना. एम आई क्लियर? यस 25 सर 24 वाला सांगा बरं. अरे बाळा, x इज इक्वल टू एक्स मॉड वाय. एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे? 30 हाँ 30 mod 7. 30 ला जेव्हा 7 ने भागाकार करतो तेव्हा बाकी किती उरते? हा 2 आहे 7 चौक 28. हा सर आलो. ठीक आहे चला. हाँ ठीक आहे चला नेक्स्ट. नाउ दीज आर व्हॉट कंपॅरिझन ऑपरेटर. आता अरिथमेटिकचे क्वेश्चन पाहिले आपण. कंपॅरिझन डी ऑप्शन फॉल्स यस आहे. परफेक्ट. False. फॉल्स आएगा. 3 इज नॉट इक्वल टू y. यस परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट. इथे अपोजिट आहे आता इथे, पण आन्सर काय यायला पाहिजे? True. येस ट्रू, बिकॉज 8 इज नॉट इक्वल टू 6. ट्रू परफेक्ट. आणि हे जर थोडंसं इथे पाहत जा बरं का, काय युनिव्हर्सिटीचा भरोसा नसतो. ते ऑप्शन देतात आणि ट्रूचा कॅपिटल स्मॉल ट्रू मध्ये पण देतात, काही पण करतात ते जरा एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या. येस सर येस ऑर नो? येस सर कॅपिटल किंवा बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड, बुलियन कीवर्ड विच इज गिवन बाय फर्स्ट कॅरेक्टर जो आहे तो कॅपिटल आहे, बाकी सगळे काय आहे लोअर केस मध्ये. एम आय क्लियर? येस सर हा येस. नेक्स्ट वन. ट्रू एज वेल. Yes. ए ऑप्शन 83 is greater than y. Yes. Next one. फॉल्स False. Yes. The 64 is less than. false False आएगा. Yes. आता हे and चे टेबल लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. ऑल चा टेबल सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. हे सांगायला लावू नका. Am I clear? फॉल्स आहे का सर? याचं फॉल्स आहे. येस. and मध्ये एक लक्षात ठेवा, दोन्ही व्हॅल्यू जेव्हा ट्रू असतील तेव्हाच तो काय असणार आहे?
True. True. Yes. What is answer here then? False. False. Yes. Now next. आता और मध्ये लक्षात ठेवा, दोन्ही जेव्हा फॉल्स असेल तेव्हाच काय असतो, हे एकच लक्षात ठेवा, तर ऑब्व्हियसली बाकीच्या गोष्टी क्लिअर होऊन जातात. म्हणजे ट्रू ला काय लक्षात ठेवायचं, अँड ला काय लक्षात ठेवा, दोन्ही जेव्हा फॉल्स तेव्हा दोन्ही नाही, ऍटलीस्ट व्हॉट, दोन्ही जेव्हा ट्रू असेल तेव्हा. येस येस. आणि ऑर मध्ये काय, जेव्हा दोन्ही फॉल्स असेल तेव्हाच फॉल्स असेल. एम आय क्लिअर? याचं ट्रू आहे ना? येस, इट ट्रू येईल. येस, ट्रू ऑर फॉल्स, ट्रू. येस. नाउ नेक्स्ट. नॉट मध्ये काय होतो, ऑपोजिट. ट्रू असेल तो फॉल्स, फॉल्स असेल तर फॉल्स आएगा. बी. यस. तो यहाँ पे आंसर क्या है अभी, यहाँ पे ये भी चेक करना है, दोनों भी वैल्यू दी है, पर यहाँ पे नॉट किसका किया उन्होंने, एक्स का. एक्स का. तो आंसर आपको वही लिखना है. तो ट्रू का फॉल्स और ट्रू का नॉट फॉल्स. तो आंसर इज बी. यस यस. नाउ नेक्स्ट. अभी यहाँ पे अपोजिट किया है, y की वैल्यू दी फॉल्स, तो नॉट ऑफ y क्या होगा? यस यस यस. ऑप्शन किधर है सर? हाँ, ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन के पहले आंसर पता होना चाहिए. एम आई क्लियर? यस सर. यस. नेक्स्ट थिंग. एक्चुअली यहाँ पे गलती से क्या हो गया, कोलन देना चाहिए, वहां पे उन्होंने कोलन नहीं दिया है, तो यू हैव टू कंसीडर दैट पार्ट. कोलन कहाँ पे देना चाहिए था, एल्स के बाद और इफ के बाद. एम आई क्लियर? यस सर. हाँ, वो कोड कैसे बताता आपको, इफ y ग्रेटर देन x कोलन ऑप्शन में एरर रहा तो एल्स. हाँ 40 आएगा ना? नहीं, ये हम क्वेश्चन बैंक हमने क्रिएट किया ना, मतलब वी आर द फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एसपीपीयू. तो कुछ लोगों ने वो क्वेश्चन बैंक मतलब टाइप करते हुए कुछ मिस्टेक्स भी किए वहां पे. एम आई क्लियर? यस और नो? तो एरर वाले क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जिसमें एक्चुअल मतलब 1% और 2% क्वेश्चन फिल. बट ऐसा होगा एक्चुअल में, और एरर होगा तो यू हैव टू टाइप व्हाट यू हैव टू राइट आंसर. बट यहाँ पे आंसर नहीं है एरर. एम आई क्लियर? यहाँ पे आंसर एरर है क्या? यस सर. यस सर. एरर आंसर है क्या यहाँ पे? नहीं तो यू हैव टू कंसीडर. यस. तो ये मिस्टेक जनरली होते हैं एसपीपी को वहां पे. उसका डी है ना सर? जो मतलब फैकल्टी क्वेश्चन बैंक भेजते हैं, वो चेयरमैन जो होते हैं वो वैलिडेट नहीं करते, वेरिफिकेशन. इफ और एल्स का कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है. एम आई क्लियर? 40. डायरेक्टली प्रिंट जेड क्या होगा, 40 होगा. वाई? बिकॉज वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40. और वाई की वैल्यू किसको असाइन की है उन्होंने, 40. जेड को. एक्स. एंड दे आर प्रिंटिंग व्हाट, जेड. सो व्हाट इज आंसर, 40. एम आई क्लियर? यस और नो? यस सर. नेक्स्ट. फॉल्स है. फॉल्स कशाला येईल रे? हाँ तो फॉल्स है, पण आंसर काय येणार आहे? प्रिंट एक्स करना चाहिए था ना वहाँ पे, लेकिन और उसका आंसर 50 आएगा फिर. सी ऑप्शन है. हेलो, 50 आएगा सर. सी. यस 50 आएगा ना? यस और नो? यस सर. 35. सर 53 आएगा ना? सर 65 आएगा ना? 65 आएगा ना? 1 रिमाइंडर आता है सर उधर एल्स, सर एल्स लिखा है सर उधर, लेकिन जो y आएगा उसके लिए कंडीशन दी सर. सर ऊपर वाले क्वेश्चन भी सर वैसे होगा सर. एक्चुअली यहाँ पे कैसे चाहिए, हेलो वन मिनट. तो यहाँ पे एक्चुअली वो कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअली प्रिंट जेड फंक्शन किसमें अंडर कंसीडर करना है और एल्स एक्स कैसे कंसीडर करना है. मैं क्लियर? हेलो. हाँ देखो अभी कैसे है, तो प्रिंट जेड जो आप हमने अंदर कंसीडर किया एल्स के, तो क्या होगा आंसर, 65 होगा सर. और एल्स एक्स भी एक्चुअली वो गलत, मतलब सिंटैक्स ही गलत लिखा उन्होंने वहां पे. एल्स एक्स मतलब क्या, एक्चुअली एक्स प्रिंट करना है एंड ओनली एक्स क्या है, व्हाट इज. एम आई क्लियर? यस और नो? सिंपली एक्स लिखा है ना वहां पे, वेदर दैट इज करेक्ट. एक्स असं लिहू शकतो डायरेक्टली, एक्स लिहिलं त्याचा काही मिनिंग राहतो का त्याला. प्रिंट एक्स or any value you have to assign that, you have to write a proper statement, you have to write. Am I clear?
हा त्याच्यामध्ये थोडंसं तिथे मिस्टेक झाली या क्वेश्चन्स मध्ये, तर ते लक्षात ठेवा. त्या टाईपचे क्वेश्चन असतील जिथे प्रॉपरली कोड असली, एक कंडिशन प्रॉपरली लिहिली किंवा खाली क्वेश्चन असतील तसेच, तर हे क्वेश्चन थोडेसे एकदा पाहून घ्या. म्हणजे त्या टाईपचे क्वेश्चन असतील तर एकदा प्रॉपरली आन्सर पहा की प्रिंट झेड कशाच्या आतमध्ये आणि एल्स मध्ये काय मॅटर केलं. एम आय क्लिअर? येस ऑर नो? हॅलो? Yes, ma'am. हा ओके. नेक्स्ट, तर ते क्वेश्चन एकदा पाहून घ्या, प्रॉपरली पहा. इथे थोडंसं त्यांनी मिस्टेक्स केलेली ऍक्च्युली, प्रॉपरली केलेलं नाही ते. वन लाईन बाय लाईन प्रॉपरली केले, सिंटॅक्स पण चुकवलेला आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज आन्सर? 15. 15. Yes, 15. 4 to the 8, 8 plus 7, 15. Am I clear? प्रायोरिटी किसको देनी है पहले ऑपरेशन में, अरिथमेटिक में? मल्टीप्लाई, हेलो, मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट. तो यहाँ पे तो अभी ब्रैकेट डाले उन्होंने, और फिर भी क्या होगा? 63. हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट डाले तो क्या होगा? 4 plus 5 होगा. तो 4 plus 5 कितना हो गया? 9. 9 into 7, 63. Am I clear? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Yes. Next. This is a tricky question actually. Sir, 2 जो 4 मैंने 1. already बताया था. 2 4 1 6. Why? Because that 24 and 16 is considered as what? क्या कंसिडर हुए हैं वो वहां पे? स्ट्रिंग. यस यस यस. डबल कोट और सिंगल कोट में जो भी वैल्यूज हम लिखते हैं, those all are considered as a string. It can be number also, it can be special symbol also. Am I clear? Yes, Yes sir. or no? Yes, Okay. sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट नेक्स्ट. ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. सी ना, सी ऑप्शन ना. 50. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next. Next. What will be the data type of X after following statement if input enter is 18? String. INT. Yes, yes, string, yes, perfect. One string because you are not mentioning what? Data type. यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा क्या? INT in bracket input और float in bracket input? No, sir. नहीं लिखा ना. तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कंसिडर करेगा वो? 18 को भी क्या कंसिडर करेगा? String. String. Yes. Yes, 41 answer is B. Now next. Now this is the interesting part जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भी. जो हमने कन्वर्जन वाला देखा था लिस्ट और टप्पल में, उसके साथ एक एग्जांपल करके दिखाया था मैंने. अभी यहाँ पे एक्स इंटर होगा क्या? 50 क्या इंटर होगा यहाँ पे? एज ए स्ट्रिंग होगा. बट आफ्टर दैट व्हाट दे हैव डन? व्हाट दे हैव डन? INT. यस यस. तो y को जब असाइन किया है तब वो उसको कन्वर्ट क्या किया है? x को इंटीजर में. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ y? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ y? यस यस, इंटीजर. तो आंसर इज डी. 42 का आंसर क्या है? डी. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ये सिंपल. अभी याद रखो आप, ये कुछ ट्रिकी पार्ट कुछ नहीं है इसमें. सिंपली हाउ टू रिमेंबर दैट अदर फ्लोट इज देयर और इंटीजर इज देयर. ओके. हाँ, बट इसमें अभी कैसे होता है कभी कभी, व्हाट विल बी डेटा टाइप ऑफ एक्स, ऐसा भी हो सकता है. ऐसे दो लाइन दिए होंगे तो एक्स का डेटा टाइप क्या रहेगा? व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ एक्स? String. String. अरे एक्स इज इक्वल टू 71 है ना, स्ट्रिंग कसे झाला? इंटीजर ना. अरे व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स? 71. 71 Integer. ओके. Integer. उसके बाद उन्होंने y को असाइन करते वक्त फ्लोट इन ब्रैकेट एक्स डाला है. तो फ्लोट इन ब्रैकेट एक्स डाल मतलब एक्स इज कंसीडर्ड एज अ फ्लोट एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन y. बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? यहाँ पे नहीं होगा ना. ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir.
गेटिंग? एम आय क्लिअर? Yes, येस sir. सर. हो हे लक्षात ठेवायचे जेव्हा वाई डॉट कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन एट दैट टाइम ओरिजिनल वेरिएबल जो भी है उसका डेटा टाइप वही रहता है जिसमें आपको असाइन किया है वो फंक्शन, तो वाई का चेंज हुआ है यहाँ पे फ्लोट. एम आई क्लियर? यस और नो? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स, so at that time your answer must be what? Integer. Am I clear? Yes or no? Yes, And sir. here what is the data type of x? Here your answer is string. Am I clear? Am I clear? Okay? Yes. Yes. Next. What is the answer? String. Yes, obviously. Because our value of x is 48, that is integer. But at the time of storing that value in x, what we have done? We are apply str function, and that str what we have passed x. So obviously वो x क्या consider होगा? मतलब that 40 is considered as a string or y. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Now last question, and then we will take attendance. B option. Simple area. Yes, multiple assignment केले. So they are asking about, yes, all having same value, x also, y also, and z also. Am I clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. So we will stop here and we will solve these questions in practical में time मिलेगा next week में, तब solve करेंगे हम Wednesday को. Am I clear? Yes sir. और Yes, मंडे से हम क्या करेंगे? We will start with unit number 3, that is function. अभी के जो भी यूनिट्स है ना, those are very specific to that specific, जो भी हमने अभी सीखा है वही यूज करके हमें यूज करना है. So simple things are there, so that's why I'm ask you to revise unit number 1 and 2, because that same thing you have to apply in unit number 3 and so unit number 4 also. Am I clear? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes sir. So all of you give your attendance. Roll number 1. Yes, sir. C01 Roll number present. 1. Yes, B01. B01. Okay. 3. Roll number 3. Friend sir. B3. Okay. C3. Those having problem, they can post in chat box. Okay. 4 is present. 2 is also present. Okay. C4 5. present. Roll number 5. Yes. Roll number 5. B5. C5. Okay. 6. Roll number 6. Roll number 6. Okay. B6 present. C6. Okay. 7. Roll number 7. Roll number 7. Yes, present. C7 present. B7 absent. Roll number 8. Both are present. C7. B7 is also present. Okay. Yes. 8 is present. 9. Roll number 9. B9 present. 10. Roll number 10. Okay. 11. Roll number 11 present, sir. Okay. 12. Roll number 12. C12 present, Yes. sir. Roll number B12 B12 present. 13. Yes. C13 also, B13 also. 14 is also. 15. C15 is present. Okay. Yes. 16. Roll number 16. Yes. 7. B16. 17. B16 absent. Okay. 17. Okay. B17. 18. B18. Yes. 19. B19 present. C19 present. C19 present or not? Absent. Okay. 20. B20. Okay. 21. B21 absent. 22. Okay, both are present. 23. B23 absent. 24 present. Okay. 25. Okay. 26. 27. B26 present, sir. Okay. B27. 28. C28 present, sir. Yes. 29. Okay. 30. C30 present, sir.
Okay. 31. 31. Okay. 32. C32. 33. 33. B33 present. 33. C33. Yes, present. 34. C34. Okay. 35. Okay. 36. Okay. 37. Okay. 38. B30 is absent. 39. Okay. 40. 40. 41. Okay. 42. 43. 44. 42. Both are absent. Okay. 42 absent. 43. 44. 44B. 45. 46. B46 present. 47. Okay. Okay. 47. B47. C40. Okay. 48. Okay. B48. B48. 49. Okay. 50. Both are present. 51. C51. C51 present. C51. Okay. 52. 52. Okay. 50, B52. B52. 53. Yes. B53. 54. 54. Okay. B54. B. Why is B students are absent? Most of the students are absent. Okay. 55 is present. Both. 56. Yes. Present. 56. C. C56. 57. Okay. 58. Okay. B58. B58. B. 59C. 59C. 60C. 60. 61. 61. 62. 63. 64. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 68. Last. Absent number from C. 5, 19, 42, 56, 61 and 64. And from B, 5, 16, 17, 23, 27, 30, 38, 42, 44, 48, 52, 53, 54. B 54, 44 present. Okay. Okay, we will stop here. Thank you. Thank you, You can sir. join for next lecture. Thank you, sir. Take care, sir. Good day, sir. Have a nice day, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Bye, Bye, teachers.